Actually, students, so far we have completed the photoelectric effect, and we came to know that radiation or light has dual nature. Sometimes it acts as a particle and sometimes it acts as a wave, and these were supported by some phenomena. Like for the wave nature, it was proved and supported by some phenomena like interference phenomena and diffraction and then polarization of light. These are some phenomena which explain the wave nature of light. Similarly, we have done the photoelectric effect, which can be explained only on the basis of particle nature of light. So it confirmed that light has dual nature. It plays double role. Now today's topic is de Broglie hypothesis. Okay, let me to write de Broglie dualistic hypothesis. This is the today's topic. De Broglie gave his dualistic hypothesis about the matter in 1923. This is based on a very simple assumption. उन्होंने कहा था कि जब नेचर में दो चीजें हैं, radiation and matter. We have already proved that radiation has dual nature. Since radiation has dual nature, therefore, de Broglie concluded that moving material particle should also have a dual nature. ये बिल्कुल एक simple assumption था, because nature loves symmetry. नेचर कभी भी असमानता की बात नहीं करता है, समानता की बात करता है, loves symmetry. तो इसी बेसिस पे इन्होंने ये अपना dualistic hypothesis of नेचर भी डबल रोल, उसका भी डबल रोल होना चाहिए. जब लाइट का डबल रोल हो सकता है जो कि ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, तो मैटर का भी डबल रोल होना चाहिए. इट शुड आल्सो प्ले ड्यूअलिस्टिक नेचर. सो इनका सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू de Broglie, according to de Broglie hypothesis, moving material particle sometimes act as a wave and sometimes as a particle. ये उनका कहना था. ये मूविंग मेटेरियल पार्टिकल कभी कभी उसका बिहेवियर वेव नेचर का होना चाहिए और कभी कभी इसका ये पार्टिकल का नेचर भी शो करना चाहिए. Sometime it should act as a particle. A wave is associated with a moving material particle which controls the particle in all respect.
तो ये जो वेव है जो कि एक मेटेरियल पार्टिकल के साथ होना चाहिए, वो पूरे उसके हर एक मोशन वगैरह हर एक चीज को ये कंट्रोल करता है। ये मैटर द वेव is called matter wave. This wave is called matter wave. That is the wave associated with a moving material particle. इसको matter wave कहते हैं और de Broglie wave. de Broglie wave. And the wavelength associated with this matter wave is called de Broglie wavelength. इसको कहते हैं de Broglie wavelength. That is lambda, इसका वैल्यू है h upon mv, where h is the Planck's constant, m is the mass of the moving material particle, and v is the velocity with which the particle is moving. A question arises here, what kind of wave is it? Is it a material wave that we have studied in class 11, or is it an electromagnetic wave that we have studied in the chapter electromagnetic waves? So ये एक अलग सा वेव है। तो यहाँ पे हम देखते हैं the mechanical waves that may be a transverse wave or longitudinal wave, जो कि 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। तो इस वेव में मेटेरियल जो पार्टिकल होता है, द पार्टिकल जस्ट ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन एंड दे जस्ट ट्रांसफर द डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। तो ये चीज हम देखते हैं, मेटेरियल जब वेव होता है उसमें पार्टिकल एक अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है और डिस्टर्बेंस को ये पास करता है। एंड इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वी हैव सीन दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड by an oscillating electric charge. जब एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट होता है या एक्सेलरेट होता है तो इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यहां पे देखा गया है कि ये जो पार्टिकल है, दिस नेचर ऑफ दिस वेव इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज टू वेव्स। तो यहां पे अब हम और एक चीज करेंगे, इसके डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा, जो कि इसकी हम ये लैम्डा है डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो इसकी वैल्यू को हम आप यहां पे डिराइव करेंगे। देखो बच्चों, एक चीज है हमने किया हुआ है, द एनर्जी कैरिड बाय एन फोटोन, एनर्जी कैरिड बाय ए फोटोन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू h nu, where h is the Planck's constant, nu is the frequency, and this is our first equation, let us say. And we know that if we consider the photon as a particle of mass m, that it must carry an energy that is given by Einstein mass energy equivalence relation, और उसको भी हम लिख लेते हैं, तो E is equal to mc square, where m is the mass of photon and c is the velocity with which the photon is moving. तो उसका energy as per the Einstein mass energy equivalence relation, it should be like this. तो ये दोनों एक ही फोटोन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो फोटोन का ये दोनों इक्वेशन तो सेम होना चाहिए। That means the energy should be same. From these two equations we get mc square is equal to h nu. ये दोनों तो है ना, हम यहां पे भी फोटोन की एनर्जी की बात कर रहे हैं और ये वाला इक्वेशन भी फोटोन की एनर्जी की बात कर रहा है, तो दिस टू इक्वेशन शुड बी सेम। तो यहां से m का वैल्यू हम देख सकते हैं, m इज इक्वल टू h न्यू अपॉन c स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द मोमेंटम? जो मोमेंटम होता है पार्टिकल का, मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला पता है, m इंटू v वेलोसिटी, क्योंकि हम यहां पे बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द फोटोन, दैट सो वी शुड टेक c, mc, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे m का वैल्यू h
mu upon c square into c. ये c और ये c कैंसिल होता है, तो दिस विल गिव यू h mu upon c. और mu is equal to mu upon c is equal to p is equal to mu upon c का वैल्यू होता है mu upon c is equal to क्या होता है, that is sorry c upon mu. This should be c upon mu. इसका वैल्यू होना चाहिए lambda. So we can write here the momentum of the particle is equal to h upon lambda. क्योंकि यहां से c upon mu आ रहा है, तो c upon mu can be written as lambda. So you have to write the value of lambda इसके denominator पे होना चाहिए. तो this is the momentum of the particle or momentum of the photon actually. तो यहां से हम photon का wavelength भी लिख सकते हैं. तो lambda can be written as h upon p. This is an important equation. इसको हम equation A लिखेंगे. De-Broglie said that if lambda is the wavelength associated with a moving photon, then this equation must be applicable for the moving material particle. ये फोटोन के लिए हम निकल रहे हैं, तो उन्होंने कहा था ये सेम इसका ये जो इक्वेशन एप्लीकेबल होना चाहिए फॉर ऑल द मूविंग मटेरियल पार्टिकल. लेट मी टू राइट द इक्वेशन नंबर ए वंस अगेन. लैम्डा इज इक्वल टू h upon mv. This is equal to h upon p. This is equation A, let's say. So De-Broglie said that if this is for photon, then this must be applicable for moving material particle. Let a material particle of mass m is moving with velocity v, then its momentum P is equal to mv. तो ये वाला इक्वेशन इस मेटेरियल पार्टिकल के लिए यही होना चाहिए, ये De-Broglie ने कहा था. तो therefore the lambda of this which is the wavelength of this material matter wave, वो h upon p और which is equal to h upon mv. तो ये this is a wavelength, De-Broglie wavelength for a moving material particle. उन्होंने ये दिया था और इसको अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. इसके एक दो पॉइंट्स को हम फर्स्ट, if v is equal to 0, that means the material particle is at rest. In that cases what we will get, the wavelength is equal to, that is h upon 0, anything upon 0, that you will get infinity. 1 upon 0 is infinity. That means we have a wave that extend up to infinity. That means we can say that if the particle is at rest, there will be no wave. We can say actually no wave in case the material particle is at rest. Similarly, if v is equal to infinity, very high, very large, in that case the wavelength of the moving material particle is equal to 1 upon infinity is equal to 0. Or if the wavelength is nearly equal to the infinity,
That means very close to the infinity. That is, the moving material particle is moving with very high speed. In that case, the value of lambda will be small. यहाँ पे हमने इंफिनिटी डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, तो इस केस में लैम्डा का वैल्यू 0 आया है. तो दैट मीन्स इफ द मेटेरियल पार्टिकल इज मूविंग with very high speed, that is, whose speed is infinitely very large, in that cases the wavelength is equal to 0. We cannot measure the wavelength of that moving material particle in that case. If V is very high, in that case the lambda will be small. ये जो लैम्डा का वैल्यू आएगा, कुछ न कुछ वैल्यू आएगा, फिक्स्ड कुछ ना, एक सर्टेन वैल्यू आएगा जिसको हम मेजर कर सकते हैं. तो दिस इज द केस दैट वी हैव डिस्कस नाउ अबाउट द डी ब्रोगली वेवलेंथ. तो ये एक चीज तो क्लियर कंफर्म हो जाता है कि जब भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल है जो मूव कर रहा है विथ सम स्पीड, विथ सम वेलोसिटी, उसके साथ एक वेव एसोसिएट होता है, और उस वेव को हमने एक नाम दे दिया, डी ब्रोगली ने एक इसको नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड मैटर वेव. तो मैटर वेव कब हो सकता है? जब पार्टिकल मूव कर रहा होता है विथ सम वेलोसिटी के साथ. अगर रेस्ट पे होगा तो उसके साथ कोई वेव नहीं होगा, तो उसके साथ वेव नहीं होगा. इफ इट मूव्स विद ए स्पीड दैट इज विथ इंफिनिटी, विथ वेरी हाई स्पीड, तो उस सूरत में भी उसके पास कोई वेवलेंथ का वैल्यू नहीं होगा. द वेवलेंथ इज इक्वल टू 0. तो ये चीज हमने यहाँ पे देख लिया. तो बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में जिस स्पीड के साथ ये पार्टिकल मूव करेगा, तो उस मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ एक वेव जुड़ा होगा, उसको हम कहते हैं मैटर वेव. मैटर वेव्स का अब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं. बुक्स में हम मैटर वेव्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. रिप्रेजेंटेशन इसका, आप कोई भी बुक्स उठा के आप देखोगे तो उसमें मैटर वेव का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा. ये कुछ इस तरह का होगा. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैटर वेव. तो यहां पे ये मैटर वेव है. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे वेव्स का कॉम्बिनेशन बन के इस तरह का एक वेव बनता है. इसको हम कहते हैं मैटर वेव. दिस इज कॉल्ड मैटर वेव. अब यहां पे एक चीज आया, एक चीज का नोट यहां पे हम नोट करेंगे. व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इनसाइड दिस मैटर वेव. तो उसको निकालना, उसके लोकेशन को फिक्स करना, ये बहुत ही मुश्किल हो गया, और उसको एक्सप्लेन किया. द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल in a matter wave is uncertain. तो अनसर्टेन हम कहेंगे, दैट मीन उसकी पोजीशन का, उसके जो फिक्स पोजीशन का हमें कोई फिक्स हमें मेजरमेंट नहीं मिलता है. दिस इज वेरी अनसर्टेन. एंड इस चीज को क्लियर किया था हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. It is explained by Heisenberg's uncertainty principle. तो इन्होंने इसके पोजीशन को, जो जिसकी पोजीशन के बारे में मैटर वेव्स में कहाँ पे इसका एग्जैक्ट लोकेशन है, वो हमें एक्चुअली फिक्स इसका पोजीशन हम लोकेट नहीं कर पाते हैं. तो इसको हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया. उन्होंने कहा था कि द पोजीशन में जितना जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल में जितना अनसर्टेनिटी रहता है, उसको उन्होंने डिनोट किया था, दैट इज बाय डेल एक्स. सिमिलरली इसके मोमेंटम में कितना अनसर्टेनिटी है, इसके साथ डिनोट किया है
डेल पी के साथ। तो अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन्होंने कहा था, इसका वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आता है h अपॉन 2 पाई। तो इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर आपको आगे जाकर इसको ये हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, तो डिटेल में आप बाद में पढ़ोगे। तो यहां से एक चीज हम क्लियर ये है कि मैटर वेव का रिप्रेजेंटेशन इस तरह का है। ये मैटर वेव जो मैकेनिकल वेव्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। इसका हमें सोर्स क्या है कि एक मेटेरियल पार्टिकल होना चाहिए और वो कुछ वेलोसिटी के साथ ये मूव करना चाहिए। तो जब ये मेटेरियल पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ कोई ना कोई वेव जुड़ा होगा, उसको हम मैटर वेव कहते हैं। उसका कुछ फिक्स वेवलेंथ भी होगा। इसका वैल्यू डी ब्रोगली ने दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। कभी कभी ये पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। तो इसको हम आप यहां पे देखेंगे, रिलेशन बिटवीन de Broglie wavelength, lambda and temperature T। तो 11th क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसमें हमने एक चीज पढ़ा था, एक मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, ये भी पार्टिकल्स एटम्स ही होते हैं, इसके साथ ये जब मूव कर रहे हैं उसके साथ एक काइनेटिक एनर्जी जुड़ा होता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूलर गैस और वी कैन से पार्टिकल एट टेम्परेचर T इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय K इक्वल टू 3 अपॉन 2 kT। we are ये small k, this small k is called Boltzmann constant, Boltzmann constant। तो ये हमने पिछले साल किया था। this is the kinetic energy of an moving पार्टिकल, मेटेरियल पार्टिकल भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो इतना ये इसके साथ काइनेटिक एनर्जी होगा। एंड if the moving material particle has mass m and moving with velocity v, then इसका kinetic energy का एक्सप्रेशन भी हम लिख सकते हैं, that is equal to half of mv square। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, these two must be same because both are the kinetic energy of the particle। तो इसको हम इक्वेट करेंगे यहां से, half of mv square is equal to 3 upon 2 kT। यहां पे v स्क्वेयर इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में आप देखोगे ये 2 और 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो v स्क्वेयर कैन बी राइटिंग एज 3 kT अपॉन m। ये यहां से हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 kT अपॉन m। अब मोमेंट हमें पता है, वेवलेंथ ऑफ ए डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, h अपॉन p का वैल्यू होता है mv। तो यहां पे हम h अपॉन mv का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो आप, ये आएगा 3 kT अपॉन m। और इसको आप फिर कर सकते हो, दिस कैन बी राइटिंग एज h अपॉन, यहां से इसको स्क्वायर भी करो, रूट करके इसको आप अंदर ले सकते हो, तो रूट 3 m स्क्वायर kT अपॉन m। स्क्वायर और रूट दे के हम इसको अंदर कर सकते हैं, और ये स्क्वायर और एक m कैंसिल हो जाता है। तो फाइनल जो हमारा लैम्डा का रिलेशन आया,
दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं h प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3m kT। ये एक रिलेशन आया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन de Broglie wavelength and the temperature T। यहाँ पे h, this is a constant, Planck's constant, 3 is constant, m is mass of the particle, this is again constant, k is a Boltzmann constant, this is also constant, so all these values are constant except temperature T। तो यहाँ पे lambda is inversely proportional to 1/√2। तो ये एक दूसरे के बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर एंड द वेवलेंथ। ये रिलेशन आया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन de Broglie wavelength एंड द टेम्परेचर T, दैट इज दीज टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसके बाद हम कल नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। जुले। जुले बच्चों, तो हमने देखा कि de Broglie ने अपना मेटल मूविंग मटेरियल पार्टिकल का ड्यूअलिस्टिक नेचर बताया था। इट शुड समटाइम एक्ट एज ए पार्टिकल एंड समटाइम एक्ट एज ए वेव। तो उनका इस मूविंग मटेरियल पार्टिकल का उन्होंने वेवलेंथ का वैल्यू भी दिया था, जिसको हम de Broglie वेवलेंथ कहते हैं, एंड दिस इज h/T और विच इज इक्वल टू h/mv। ये हम लिख सकते हैं, दिस इज द de Broglie वेवलेंथ। यहाँ पे हमने कर लिया था। अब हम और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड विथ सम पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें निकालने के लिए पूछता है कभी कभी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे। de Broglie wavelength, de Broglie's wavelength of an electron, in fact we say here moving electron, क्योंकि जब रेस पे होगा तो उसके साथ कोई वेवलेंथ नहीं होगा। इफ द electron, this is a material particle, if it is moving with some velocity, then इसके साथ ये वेवलेंथ जुड़ा होगा। तो इस वेवलेंथ का वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाता है, इसको हम देखेंगे। दिस इज द टॉपिक, टुडेज टॉपिक ये है इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन हमेशा मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ लेट अस एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे हम करेंगे इसको, यहाँ पे हम एक पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन जब हम यहाँ कहीं रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जिसकी वजह से दिस इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। तो ये इस तरह से एक्सेलरेट करना शुरू करेंगे। तो इसके हम यहाँ पे हम देखते हैं, तो जो ये एक्सेलरेट करेगा तो दैट मीन्स वी आर एक्चुअली डूइंग एन वर्क अपॉन दिस चार्ज, दैट इज ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर ये वर्क डन कर रहा है। तो वो जो वर्क डन कर रहा है, तो दैट वर्क डन विल कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जब मूव करेगा तो उसके अंदर एनर्जी आएगा, दैट इज ड्यू टू द वर्क done on this electric charge E due to the potential difference। तो ये हमें पता है, work done is equal to charge into potential difference, और इस केस में हमारा जो चार्ज है that is E into V। So actually we are doing an work of EV on this charge electron. This much of work is doing on this charge, so this work done will convert it into kinetic energy। ये कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे,
ये बराबर जितने हम इसके ऊपर कम कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएंगे. दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ mv². तो इस चीज को हम यहां पे लिखते हैं. लेट एंड electron is accelerated. Electron is accelerated with the help of potential difference V. The work done on the electron E due to potential difference is converted into kinetic energy. यही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. वर्क डन ऑन द electric charge E due to the potential difference V is given by E into V, and this will convert it into the kinetic energy of the electron. तो यहाँ से हम देखेंगे ये हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी mv² is equal to EV. यहां से हम V का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. EV यहां पे एक चीज नोट करना है, ये जो V है दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस. इसको थोड़ा सा हम अलग करेंगे. ये जो V है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस इज potential difference and this is the velocity of the electron. These two are totally different. तो यहां से हम V को निकालेंगे. V² is equal to twice of EV divided by m, और V is equal to root of 2EV upon m. ये वैल्यू आया V का. This is the velocity of the electron. तो हम यहाँ पे हम वेवलेंथ जो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ है इसको हम दिखा सकते हैं. वेवलेंथ इज गिवन बाय h/mv. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. h डिवाइडेड बाय m का वैल्यू है m, यहाँ पे हम रखेंगे. v का वैल्यू हमें पता है, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 2EV upon m, और that will give you h upon इसको m इसके अंदर लेके जाएंगे हम, तो ये वैल्यू आएगा 2m² EV upon m. तो ये एक m कैंसिल हो जाएगा. तो that will give you h upon root of 2m EV. तो ये जो वैल्यू है दिस इज द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v. जब ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा होता है तो इसके साथ इतने वेवलेंथ का वैल्यू जुड़ा होता है. और इसका वैल्यू यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे. इसका वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लैम्डा इज इक्वल टू, बिकॉज h वी नो दिस इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. इसका वैल्यू हमें पता है 6.626 into 10⁻⁻34 divided by under root of 2 into m. m is the mass of electron. ये भी हमें पता है 1.6 or 9, sorry, this one is 9.1, not 1.6, 9.1 into 10⁻⁻31 and 2 me, and
V is the potential difference that we have applied to accelerate this electron. So by calculating this value, you will get 12.27 upon root V potential difference in angstrom. So this is the wavelength that will be associated with an electron which was accelerated with potential by giving potential difference of V volt. So ये इतना wavelength इसके साथ जुड़ा होगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ. Dear student, as you know that de Broglie gave only the hypothesis that material wave must associated with a wave और उस वेव का wavelength का वैल्यू भी उन्होंने दिया था. बट उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था कि मैटर वेव हो सकता है और कोई मेटेरियल पार्टिकल के साथ वेव जुड़ा होगा. तो इनका कोई प्रूफ नहीं था, सिर्फ उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था इन ईयर 1923. लेटर डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था दैट प्रूव्स द वैलिडिटी ऑफ de Broglie's हाइपोथेसिस. तो उन्होंने ये प्रूव किया था कि हाँ, इलेक्ट्रॉन जो कि एक मेटेरियल पार्टिकल है, दिस कैन आल्सो शो अ डायफ्रैक्शन. तो ये डायफ्रैक्शन कब होता है? जब कोई पार्टिकल का वेव नेचर होता है, या हमने इससे पहले पढ़ा ऑप्टिक्स में, जब कोई लाइट होगा तो लाइट के पास जब वेव नेचर होगा, ओनली देन इट कैन प्रोड्यूस डायफ्रैक्शन. सो Davison and Germer in this experiment showed that electron can also show diffraction, which confirms that the moving material particle has a wave matter and it has its some definite value of wavelength associated with it. तो ये प्रूव किया था इन्होंने, that is diffraction of electron. Diffraction ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जो कि एक मेटेरियल पार्टिकल है, ये भी डायफ्रैक्शन शो करता है. दैट मीन्स ये हमें प्रूव कर देता है कि ये एक वेव नेचर भी शो करता है. पार्टिकल नेचर तो है ही है और यहां से ये भी प्रूव कर लेता है कि ये वेव नेचर भी है. इस एक्सपेरिमेंट का क्या क्या पार्ट्स है? ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज्ड बाय द जर्मर एंड डेविसन टू स्टडी द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसको हम थोड़ा इसके कंस्ट्रक्शन किया और हम जाते हैं, इसको हम देखेंगे. यहां पे आई हैव गिवन दिस इज F is in filament. F is in filament which is coated with barium oxide. तो इसके ऊपर ये जो हमने एक कॉइल यहाँ पे यूज किया है, इसके ऊपर एक कोटिंग होगा बेरियम ऑक्साइड का. बेरियम ऑक्साइड is coated on this filament F, and the ends of these filaments are connected to a low tension battery which supplies electric current to flow through this coil, and ultimately it will heat up the coil. जब बेरियम ऑक्साइड इसके ऊपर कोटिंग होगा और ये जो ये हीट अप होता है, तो उसके अंदर से ये एकदम ये थर्मल एनर्जी गेन होने के साथ ये इट स्टार्ट इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन. यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा और दिस इलेक्ट्रॉन इज देन एक्सेलरेटेड विद द हेल्प ऑफ एन high tension battery that we have used here, and that is connected between a metal rod here, that is this one is C, and a cylinder is used here, and the ends of the positive end of this high tension battery is connected to a cylinder with a fine bow at its middle. With the help of this high tension voltage, this ejected electron will start accelerating towards the cylinder, and then it passes through this hole. So it will form a fine beam of electron. Fine beam of electron which then allowed to strike on a nickel crystal that I have shown here, I have written here, and this is a nickel crystal. इसके ऊपर ये strike करेगा. And we have used another, that is this is a detector. यहाँ पे हमने रोटेटर डिटेक्टर लिखा है, इसको हम डी यहाँ पे हम लिख लेते हैं.
D is a detector which is attached within galvanometer that can detect the electron which is scattering from this nickel crystal. So this can be rotated in this circular rotation, so we can detect the intensity of the current at its various direction. So we can, by changing the value of alpha, we can detect the intensity of current at various places after scattering from this nickel crystal. This is the whole experimental setup. Now let us talk about the working of this experiment. The fine beam of the electron which is emitted from this cylinder is allowed to strike on this metal, and this galvanometer G detects the intensity of the electron that is coming out from this metal surface. It scattered actually when the electrons strike with this metal surface, then the electrons scattered. And the electrons are scattered in different direction, and the intensity of that scattered electron is detected by this galvanometer. वो कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से आएंगे तो इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर भी जुड़ा है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होना शुरू करेगा. डिफ्लेक्शन होगा जब जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंच जाए वहां पे इट विल शो द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, और जहां पे इलेक्ट्रॉन कम आ रहा है वहां पे इसका डिफ्लेक्शन का वैल्यू कम होगा. दैट क्लियरली हमें यह पता चलता है कि कहां पे इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी ज्यादा है और किस एंगल पे इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी कम है. तो इसको हम थोड़ा सा यहां पे हम लिख लेते हैं. व्हेन फाइन बीम of electron strikes on the metal surface, normally it will scatter the electron in different direction. ठीक है, इस चीज को हम यहां से ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम इसको मेजर करते हैं. एक्सपेरिमेंट was carried on different value of the accelerating voltage. इसको हम लिख लेते हैं. Experiment was conducted on different values of accelerating voltage. ये वोल्टेज है जो कि हम यहाँ पे लगा देते हैं हाई टेंशन बैटरी, तो इसका वैल्यू अलग अलग चेंज करके इन्होंने देखा था. दैट इज फ्रॉम 44 वोल्ट से लेके ये 68 वोल्ट तक का वेरिएशन करके इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था. जब हम देखते हैं व्हेन द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज 44 वोल्ट, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू बेशक इसका कम होगा, बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज लो 44 वोल्ट, तो इनका इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कम होगा, उसका वेलोसिटी कम होगा. तो ये यहाँ पे मेटल के पास स्ट्राइक करने के बाद ये अपना इंटेंसिटी अलग अलग डायरेक्शन में दिखाता है, और इसका हम एक अलग से ग्राफ भी हम बनाएंगे. तो ये अलग अलग इंटेंसिटी पे जब हम देखते हैं, अलग अलग एंगल पे हम देखते हैं, यहाँ पे भी उसका इंटेंसिटी वो हमें कैसे इंडिकेट करता है. यहाँ पे अगर गैल्वेनोमीटर में ज्यादा डिफ्लेक्शन कम डिफ्लेक्शन होगा तो इंटेंसिटी कम है, तो क्लियरली एक चीज पता चल जाता है, और इसको हम हर एक एंगल पे लेके देखते हैं. तो अब इसका फिर ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको बढ़ाते गया, 44 वोल्ट पे भी हर एक एंगल पे जाके देखा, फिर 45, 46 इस तरह से बढ़ाते गया, कब 68 वोल्ट तक इस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को हमने इंक्रीज करते गया.
तो उस समय हर एक, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हर एक वोल्टेज पे हमने फाई और आई के बीच में एक ग्राफ बनाया। तो वहां पे एक चीज नोटिस किया गया, एट द वोल्टेज ऑफ when the accelerating voltage V is equal to 54 volt, when the accelerating voltage is 54 volt, तो इस चीज पे एक ग्राफ इन्होंने ड्रॉ किया था बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द electron coming inside the galvanometer after reflection और फाई, दैट इज द, ये जो एंगल है एंगल फाई, तो इस दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट उन्होंने किया था। तो उस ग्राफ को हम यहाँ पे देखेंगे। एट दिस वोल्टेज V इज इक्वल टू 54 वोल्ट, एक ऐसा ग्राफ आया, इसको हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। दिस इज फाई, एंगल फाई ये, और ये हम यहाँ पे इसका इंटेंसिटी हम देखते हैं। तो एट 54 वोल्ट ये कुछ ऐसा ग्राफ आया, एंड ये अलग अलग, ये फाई का वैल्यू अलग अलग है, और यहाँ पे दैट इज व्हेन फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री, 50 डिग्री एंगल, यहाँ पे इट शोज अ पीक, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द करंट इज डिटेक्टेड बाय द गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे हम एक पीक दिखाई दे रहा है। तो ये पीक, ये जो चीज है, अलग अलग वोल्टेज पे भी यहाँ पे ये पीक नजर नहीं आया था। पहले कुछ फ्लैट सा ये ग्राफ आया था, बट एट दिस वेरी पर्टिकुलर एंगल दैट इज फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड द वोल्टेज इज इक्वल टू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दैट इज 54 वोल्ट। तो ये एक अलग सा एक स्पेशल पीक आया था, एंड यहां से हमें ये चीज एक कंफर्म हो जाता है कि एट दिस वेरी पर्टिकुलर एंगल दैट इज फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहां पे हम देख सकते हैं फाई का वैल्यू अगर 50 हो, फाई का वैल्यू 50 डिग्री हो, तो इस एंगल पे और ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 54 वोल्ट पे ये पीक शो कर रहा है। द अपीयरेंस ऑफ पीक क्लियरली इंडिकेट्स दैट देयर इज ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, एंड दैट इज द डायफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये डायफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रूव कर देता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन शो करता है, दैट मीन्स इट इज ऑफ वेव नेचर। तो इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर है, ये क्लियरली हमें शो कर देता है। तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे द अपीयरेंस ऑफ पीक, अपीयरेंस ऑफ पीक indicates that constructive interference of electron, that is हम कह सकते हैं diffraction of electron. That means electron is showing diffraction, which is possible only in case of a wave nature of the electron. तो इसका हमें हमारे सिलेबस में इसका आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट ही पूछा हुआ है, इसका कैलकुलेशन इस हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं करते हैं। लेकिन एक यहाँ से ये चीज, ये जर्मर और डिवीजन को भी बाद में ये इसको प्रूव करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ये हाइपोथेसिस सबसे पहले दिया था डी ब्रोगली ने, फिर इसके डी ब्रोगली ये जो एक्सपेरिमेंट प्रूव कर देता है डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को भी। तो ये यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करेंगे। ये हमारा सिलेबस का लास्ट टॉपिक भी था जुले।